Assalamu alaikum students, this is Shazia Rana, your vice principal and computer science teacher. We are going to have our online class session number 7. We are covering computer science topic, that is advantages and disadvantages of computers. Okay, so let's start the topic. Let me share the screen with you. Have you ever heard about computers? Of course, you must have heard about it. And in last 6 sessions, we have covered so many things about computers. Can you tell me about advantages and disadvantages of computer? Do you know what are the good things about computers and what are the limitations about computers? Have you ever heard about it? कुछ सुना है इसके बारे में? Okay, ठीक है. Let me guide you about the same. Okay. Okay. Advantages and disadvantages of computers. Advantages. If we talk about advantages, what it can be. Let's go through the topic. Computers make us more productive in many of our jobs. In education, they can help us for better understanding, faster learning, and broaden our thinking. If you talk about the first point, computer systems have made us more productive in many of our jobs. Like if I'm a typist, so I'm not using typewriter. Typewriter is the machine through which we can type. But if I'm having the computer system, so I'm having I can work more effectively during my job. What is the difference between that? Typist is the one who is using the typewriter for typing, and during typing, if she had a mistake, if I had a mistake, so that is definitely a typing error. So that goes on onto the paper. So we cannot erase it. We have to type the document again. But if I'm typing something on computer system, so that means I can type, I can erase, I can remove so many times that I can edit one of my document for 1,000 times. एक बार जो चीज बन जाती है वो बन जाती है, और उसके बाद उसे आप चाहें तो 1,000 टाइम्स आप उसे एडिट कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं टाइपराइटर की बात करूं तो उसमें मिस्टेक होगी तो मिस्टेक नजर आएगी, पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा टाइप करना पड़ेगा. इसी तरह से अदरवाइज अगर हम देखें, इफ यू आर गोइंग टू शॉपिंग मॉल्स, हमने पॉज टर्मिनल देखा होगा, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल. वहां पे क्या होता है, दे आर जस्ट कैलकुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ द ग्रोसरी आइटम्स. ठीक है, ग्रोसरी आइटम्स की प्राइसेस वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं मशीन के थ्रू. एंड इफ यू थिंक अबाउट 30 years बैक, जो शॉप्स के ऊपर आप कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते थे, तो दे वर मेकिंग द लिस्ट. लिस्ट बनाता था, लिस्ट बनेगी, फिर एक एक चीज आइटम का नाम लिखा जाएगा, उसकी प्राइसेस लिखी जाएंगी और कैलकुलेशन होगी. उस कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, पॉजिटिवली गलती भी हो सकती है, नेगेटिवली गलती भी हो सकती है. पॉजिटिवली गलती है कि शॉपकीपर के पास ज्यादा पैसे चले जाएंगे, नेगेटिवली गलती ये कि शॉपकीपर के पास कम पैसे हैं. बट इफ वी आर टॉकिंग अ मशीन, मशीन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द बारकोड, और वो हमारी जॉब को बहुत ज्यादा आसान करता है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ग्रोसरी शॉप्स में कितना रश होता है, उसके बावजूद विद इन very short time they calculate each and every item and they let them go. Now come towards the big offices and companies. If I'm talking about the offices and companies, lot of typing work, lot of presentation work, like I'm doing my work on presentation, lot of presentation work, lot of uh, data entry work, lot of worksheet work can be done through the computer system. Similarly, in banking sector, like we are having thousands of transactions on the daily basis. Once we are having thousands of transactions on the daily basis, then definitely there must be a machinery which can solve each and every transaction. For that, we are having the ATM system. ATM system is having a particular system inside it, which is calculating each and every data which is coming through the mainframe system, head office से जो आ रहा होता है, and which is coming from the personality who is using the ATM card to take out the money. Fine. Similarly,
इसी तरह से और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कंप्यूटर सिस्टम हमारे लिए कामों को बहुत ज्यादा आसान बना रहा है। अब हमारे पास जैसे अटेंडेंस सिस्टम है, जैसे आप लोगों को हम वी आर सेंडिंग एसएमएस टू यू पीपल, जब हम आपको एसएमएस भेजते हैं तो एक एसएमएस भेजते हैं वो सबको चला जाता है। दैट इज इजी रादर कि हम आप सबको लेटर लिखें, ठीक है, एक को लेटर लिखें उसके एड्रेस पे भेजें, दूसरे को लेटर लिखें उसको एड्रेस भेजें। इसी तरह से जो अब जो इनवाइट्स भेजे जाते हैं वो भी व्हाट्सएप पे चले जाते हैं इजीली, आपको डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में इसी तरीके से काम हो रहा है। साइंटिस्ट जो सुपर कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है वो सब कहाँ से किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, वो सारे का सारा कंप्यूटर सिस्टम से कैलकुलेट हो रहा है। So the best advantage of computer system is that it make us more productive in many of our jobs. हमें उसने हमारे जॉब्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया है। In education, they can help us for better understanding, learning and broaden our thinking. Education sector में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है कंप्यूटर सिस्टम ने और हमारी सोचने की पावर को भी बढ़ा दिया है। किस तरीके से? मुझे याद है जब पहले हम पढ़ते थे, जब हम छोटे थे, तो हमारे पास एक बुक, एक कॉपी और ज्योमेट्री बॉक्स होता था जिसमें हमारे पेन पेंसिल वगैरह रखे होते थे। उस बुक में से जो टीचर ने पढ़ाया है वही हमने पढ़ना है, वही हमारी नॉलेज है, राइट? Like I'm talking about page number 11, like suppose if it is page number 11, paragraph number 2, and teacher is explaining page number 11, paragraph number 2, so she was just explaining the same. उसके अलावा उसमें कोई रेफरेंस नहीं आता था कि अच्छा ये इसके रेफरेंस में ये चीज भी देख लीजिए, इसके रेफरेंस में ये चीज भी देख लीजिए, इसके रेफरेंस में आप किसी बुक को भी स्टडी कर लीजिए। नो, दैट पैराग्राफ इज डन। तो हमारा जो थिंकिंग है हमारा वो ब्रॉडन नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, वी आर जस्ट पुटिंग थिंग्स ऑन इंटरनेट एंड वी कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन एनी ऑफ द साइट। तो एक डेटा हम कई जगहों से ले सकते हैं जिसमें कि बहुत सी जगहों पे वेरिएशन भी होती है, उससे हमारा जो लर्निंग प्रोसीजर है उसके होराइजन्स बढ़ते हैं, ठीक है। Like I'm talking about few advantages here. If you are typing somewhere on internet and saying that you are looking for advantages of computers, तो आपके पास और भी इससे भी बड़ी लिस्ट आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो आपका जो थिंकिंग होराइजन है वो ब्रॉडन हो गया, आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए। In hospitals, we have better diagnosis, proper treatment, and better health care. Yes, in hospitals, we have better diagnosis. पहले क्या होता था, सिर्फ एक एक्सरे मशीन होती थी जिसके थ्रू एक्सरे होता था, और एक्सरे होना एक बहुत बड़ी बात होती कि ठीक है, लगता था जी कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसका एक्सरे हो रहा है। बट नाउ अब क्या है, एक्सरे मशीन के अलावा बहुत सी चीजें अवेलेबल है। अब बीपी अपरेटस आपके घरों पे अवेलेबल है, हम अपनी रेस्ट पे लगाते हैं, हमारा बीपी अपरेटस हमें पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि जिसको भी घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो बीपी है या कुछ और है। तो अगर बीपी का प्रॉब्लम होगा तो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है। तो घर पे हम चेक कर सकते हैं, थर्मामीटर हमारे घरों पे अवेलेबल है, हम चेक कर सकते हैं। वी आर हैविंग ए शुगर डायबिटिक मशीन एट आवर प्लेसेस, शुगर मशीन हमारे घरों पे, हम घर पे बैठ के अपना शुगर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ब्लड सिस्टम के थ्रू भी हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। ब्लड सिस्टम के थ्रू भी जब हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है तब भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर ब्लड, जो भी टेस्ट हो रहा होता है उसके थ्रू पता चल जाता है। वंस वी हैव द गुड डायग्नोसिस वी कैन हैव अ गुड ट्रीटमेंट। जब एक टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू एक अच्छा डायग्नोसिस हो जाता है तो हम एक अच्छा ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर एमआरआई होता है तो हमारी बॉडी की एक एक बोन टेस्ट कर लेता है, चेक कर लेता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, so we can have the treatment, ठीक है। In business they are used to record stocks of raw material as well as finished products, making customers bill analysis of various products etc. यही चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। पहले एजुकेशन की बात की, फिर हॉस्पिटल्स की बात की, अब हम बिजनेस सेक्टर की बात कर रहे हैं। बिजनेस सेक्टर में क्या करते हैं, आपका जितना भी स्टॉक है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली, कौन कौन सी चीजें बन गई, कौन कौन सी चीजें प्रोडक्शन में चली गई, डेवलपमेंट में क्या क्या काम हो रहा है, कस्टमर्स के बिल कैसे बनेंगे, एनालिसिस कैसे होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से किस तरीके से चेक करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर डे टू डे प्रोसेसिंग ऑफ कस्टमर्स
अकाउंट्स एंड पेमेंट्स, जो कि हमने कुछ देर पहले बात की कि अकाउंट्स एंड पेमेंट्स कस्टमर्स के चेक किए जाते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन की हैंडलिंग that is of course individually it is not possible, but through computer system it is very easy and gently we are doing it. In manufacturing side, जहाँ पर चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, they provide ways to develop a presentation of the product and to test in a variety of simulated environment. जब जहाँ पर भी कुछ मैन्युफैक्चर हो रही होती है, कुछ ऐसी चीजें जो कि मार्केट में आनी है, वहां पर वो ऐसी को प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं कि वो अपनी हर किसी न किसी डिवाइस की एक साइमुलेशन डेवलप कर लेते हैं. सिमुलेशन का क्या मतलब होता है? जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में कोई वीडियो जनरेट हो जाती है, वो वीडियो जो है वो आप अपने कस्टमर को दिखाकर बता सकते हैं कि ये चीज इस तरीके से काम करेगी. जैसे कि आपने टीवी पे एड्स देखे होंगे कि अगर कोई रोबोटिक कार है तो उसकी वर्किंग किस तरीके से होगी, तो वो टीवी पे हमें दिखा देते हैं सिमुलेशन और हम ऑर्डर करके उससे मंगवा लेते हैं. ठीक है. दी अदर देन दीज एडवांटेज देयर आर लॉट ऑफ अदर एडवांटेजेस आल्सो. इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट वी आर नाउ मोर प्रोडक्टिव इन आवर जॉब्स. अब हम अपनी अपनी जॉब्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं. हमारी जॉब कोई भी हो सकती है, टीचिंग, टाइपिंग, बिजनेस, स्टॉक, साइंटिस्ट, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, कुछ भी, कोई भी जॉब हो सकती है हमारी. लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की वजह से हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज कि हम अपनी अपनी जॉब्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए. ठीक है. Now come towards the disadvantages. There is always another side of the picture. If there are some advantages, then there must be some disadvantages too. So let's talk about the number one, that is unemployment due to automation. Automation क्या है? Automation is basically a terminology wherever the computer systems are working and the jobs are based on computer system, that is known as automation. चीजें जहां ऑटोमेटिक साइड पे चली गई हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मतलब जॉब्स खत्म हो रही हैं. जॉब्स खत्म हो रही हैं, किसकी जॉब खत्म हो रही है? मुझे तो टाइपिंग आती है, मुझे तो जॉब मिल गई. मुझे तो बैंकिंग सेक्टर में ट्रांजेक्शन हैंडल करना आती है, मुझे तो जॉब मिल गई. तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है? जी, अनएम्प्लॉयमेंट बेटा उसकी बढ़ रही है जिससे कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना नहीं आता. ठीक है. जैसे कि अभी मैंने टाइपराइटर की एग्जांपल दी आपको. आई कैन वर्क ऑन टाइपराइटर, मैं इस पे ही काम कर सकती हूँ. मैं 20 साल से उसी पे काम करी, मुझे उसी की आदत है. आई एम यूज्ड टू ऑफ इट. बट इफ अ पर्सन इज वर्किंग ऑन computer system, they can edit any of the page anytime. So the company is having the thinking that the person who can work on computer system are much eligible to work in less time. वो कम टाइम में ज्यादा काम करके देगा, तो वो क्या करेगा? जो टाइपराइटर वाली बंदी होगी उसको वो जॉब करने से मना कर देगा, तो उसकी जॉब चली गई. इसी तरह से और भी बहुत सारी जगहों पर जहां कंप्यूटर सिस्टम पे लोग काम नहीं कर पाते उनको जॉब छोड़नी पड़ती है. Okay, so this is one of the disadvantage that those who are not learned computer system, they have to leave the job. उनको जॉब छोड़नी पड़ती. ठीक है. Okay. Wastage of excuse me, wastage of time and energy in using computer activities. टाइम और एनर्जी जो है वो यूजलेस कंप्यूटर एक्टिविटीज में वेस्ट होता है. दैट इज ट्रू. देखिए, हर चीज का फायदा और नुकसान तो अपनी जगह पर है, लेकिन हर चीज का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है. द यूजेज ऑफ एवरीथिंग विल मेक इट गुड और बैड. Like a TV system, if I'm talking a TV system, TV screen, we are watching TV day and night, we are watching TV, so definitely that's a wastage of time. But if we are listening something a Quran something on Quran TV से हम कुछ सीख रहे हैं, कोई अच्छी बायोग्राफी हम देख रहे हैं, कोई अच्छी वीडियो हम देख रहे हैं, so that is the learning. For short time just watch that video and switch off the TV. Similarly for computer system, if I'm making my presentation, that is good. If I'm working on any of the software, that is good. But if I'm just browsing the internet and just going here and there, not doing anything in particular productive side, then definitely that is the wastage. I'm just browsing, I'm just
playing a game, I'm just unnecessarily watching the videos. So that means that we are wasting our time and energy on useless computer activities. And if it is useless, then why we are wasting our time and energy? It's an unfortunate that 80% of the people who don't know about the computer system's advantages, they are actually using it as at the disadvantage side. They are wasting their time and energy. Like in these days, we are having lockdown and we are at our places. They are not thinking to use the computer system to learn new things. They are wasting their time and energy in unnecessary computer activities. The very popular computer activities these days, that is that PUBG game. That PUBG game have made loss of many lives. बहुत से लोगों की जिंदगियां भी उसकी वजह से खत्म हो गई. So life is not the thing which we can spare for any of the thing for a game. जिंदगी ऐसी चीज नहीं जिसको किसी गेम के लिए वेस्ट कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने सुसाइड्स की हैं, which is wrong. Why we are having this much impact of any of the game in our brain? Because we are spending much time on it. जब हम ज्यादा वक्त उसको दे रहे हैं तो उसके बारे में हम ज्यादा सोच भी रहे हैं. जब ज्यादा सोच रहे हैं तो फिर दिमाग गलत डिसीजंस भी ले लेता है. So that is the wastage of time and energy in useless computer activities. इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज कंप्यूटर सिस्टम से रेलेवेंट इस तरह की हैं जो कि आपके लिए टाइम वेस्टेज है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप कंप्यूटर सिस्टम को किन कामों के लिए यूज करते हैं. आई हैव नेवर थॉट कि मैं कभी इस पर ऑनलाइन क्लास भी लूंगी. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लासेस भी लूंगी. बट वी आर टेकिंग, वी आर डूइंग इट. इट ऑल डिपेंड्स कि आप इस चीजों को कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में एडवांटेज भी देती है हमें कि डेटा सिक्योर है, और एक तरीके से डिसएडवांटेज भी देती है. एडवांटेज किस तरह से देती है? मेरा ये लैपटॉप मेरे पास है, इसमें मेरा बहुत सारा डेटा है, स्कूल का बहुत सा कंटेंट है. आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस सिस्टम, so my data is secure. But unfortunately, in case God forbid किसी वजह से मेरा लैपटॉप किसी और के हाथ लग जाता है, कोई मेहमान घर में आया, उसने ऑन कर लिया, या किसी वजह से मेरा पासवर्ड खुला रह गया, या अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिट मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, तो क्या होगा? जो भी कोई मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेगा, किसी तरीके से उसने मेरा पासवर्ड निकाल दिया और सिस्टम उसके सामने डेटा आ गया. नाउ ही और शी कैन यूटिलाइज दैट डेटा इन एनी वे. जब सिस्टम एक बार उसके सामने खुल गया तो फिर वो मेरे डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है. डिलीट कर देगा, फॉर्मेट कर देगा, या उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल करेगा. सो दैट इज द डिसएडवांटेज, दैट इफ योर सिस्टम इज इन अनदर हैंड, so it can be a loss of your data. Privacy. कंप्यूटर सिस्टम का ये डिसएडवांटेज है कि आपकी प्राइवेसी नहीं रहती. although we are having few things through which we can maintain the privacy, but here if I'm talking about the privacy, like we are taking the online class, like my video is going here and there, मैं आप मुझे देख रहे हैं, मेरा फेस देख रहे हैं, मैं आपका फेस देख रही हूँ, हमारी वीडियोस इंटरनेट पे भी जा रहे हैं. सो देयर इज नो प्राइवेसी. ठीक है. जो हम लोग जो इतना हिडन रहते हैं अपने घरों में, सो हमारी प्राइवेसी नहीं रही. बट देयर आर सम टूल्स थ्रू विच यू कैन मेंटेन योर प्राइवेसी. और मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं अपनी इस स्क्रीन के ऊपर पढ़ाते पढ़ाते अपना फेस जो है मैं हाइड कर दूँ. देखिए हाइड हुआ हुआ नजर आ रहा है. So privacy is the one thing that is a disadvantage, but we are having the tools to control it. Okay. कंप्यूटर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. नंबर 5, यस कंप्यूटर क्राइम्स बढ़ गए हैं. डेटा हैकिंग की तरफ लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं. दे आर थिंकिंग, दे आर having a thought that if they will be hacking any of the systems, so they can be putting a virus in any of the computer system, or they can get the money from any of the account. Yes, it is happening. That is called cyber crimes. ये हो रहा है, but for that we are supposed to lock our systems. हमें अपने systems को lock करना होगा. कंप्यूटर क्राइम्स हैं, आपके अकाउंट से आपका पैसा निकल जाता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम से आपका डेटा चला जाता है, लेकिन इसको सिक्योर करने के लिए यू आर सपोज टू डू मच एफर्ट्स. ठीक है.
Okay, this is the topic of advantages and disadvantages of computer. Your home task is you are supposed to learn both the topics and I will be sending you the quiz for the same. Okay? Thank you so much. Okay, now come towards the question and answer session. Do you understand the topic, beta? Unmute your mics. Do you understand the topic? Yes. Yes. Okay, I think it's not that difficult. You have to browse the internet and find out more advantages and more disadvantages of the computer system. Okay, I'm now closing the session. That was the easiest session of the chapter and you can easily go through it. Fine. I'm closing the session and I will be reconnecting again for part number 2. Okay. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye for 5 minutes.